and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss about Unified Pension Scheme. Already, Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification New Delhi, the 24th January 2025. Gazette notification already issued by the government related to the Unified Pension Scheme. So today I will discuss very briefly and I will clarify everything related to the Unified Pension Scheme with some calculations and all the features and eligibility criteria. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely this session would be interesting one, and till end just you listen my video, then definitely you can get complete information about Unified Pension Scheme. Clear? So you see, follow my Facebook page Asit Government Rule Guru. If you follow it, then in systematic order you can get the video links. So please follow my page. Next, my WhatsApp number, it is 8327782034, and if you're having any query, then you can contact with me. Also, you can join my Telegram channel, link is there, t.me/PAPI2034. Also, you join my Telegram channel so that you can get notification and you can get my video. So, so my friends, again, I request you, please subscribe my channel so that you can get qualitative video related to the government rules. So now I am going to discuss about Unified Pension Scheme. Now the Gazette notification already issued by the government on 24th January. So first one, you see the introduction. It is clearly given the Unified Pension Scheme has been introduced as an option under the National Pension System by the central government for the central government employees covered under NPS, so that they may receive an assured payout after their retirement. You know that after 1/1/2004, right, the government employees, those who joined after 1st January 2004, they are having NPS. So those employees having NPS, they are having option for UPS, Unified Pension Scheme, right? So it is option given by the government for Unified Pension Scheme, but condition is actually those employees basically having NPS, right? So after retirement, they must get assured payout. It means assured pension, right? So I will discuss everything in subsequent time. Most important one, next one, it is a fund based payout system which relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions. So fund based means actually two type of funds. One is the individual corpus. You remember, one is the individual corpus. Okay, individual corpus fund. 10% of employee, right, and 10% of employer, right? So first fund is individual corpus. So 10% of employee means the contribution of the employee is 10% means basic pay plus DA. So similarly, you know that in NPS actually employee our contribution is 10% basic pay plus DA. So similarly, in individual corpus, the contribution of the employee is 10%, and employer, it means government contribution is also 10%. So both credited to individual corpus fund. Both credited to individual corpus fund. Clear? Next, another fund is there. It is pool corpus. Pool corpus, it is 8.5% and it is given by the government. Similarly, 8.5% basic pay plus DA, 8.5% of basic pay plus DA, okay, it is given by the government.
it is given by the government for additional support of the assured pension. ठीक है, तो two type of funds are there. One is the individual corpus fund, 10%, 10%. Employee share is 10%, employer share is 10%. So 10% means we calculate on basic pay plus DA. And another one, it is next one, it is pool corpus. Second one, it is pool corpus. Pool corpus, it is 8.5% basic pay plus DA. It is given by the government, and it is additional support for the assured pension. Right? So it is a so one more question is coming. It is a fund based payout system. Right? So next part. Operational and eligibility of UPS. Actually now government has declared that unified pension scheme will be operational from 1st April 2025. 1st April 2025 actually the unified pension scheme would be operated. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. और द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दे दिया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनका एनपीएस है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये आइदर एनपीएस और यूपीएस. ओके, वो अभी उनके लिए ऑप्शन आ गया, आइदर वो एनपीएस और यूपीएस, वो किसी एक को चूज कर सकते हैं. मगर इसमें कंपलसरी है दो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैविंग एनपीएस, राइट, दे आर हैविंग ऑप्शन, सो दे चूज आइदर एनपीएस और यूपीएस. क्लियर? नेक्स्ट वन, eligibility under the scheme, it is very important one. Assured payout, the assured pension shall be available only in the following cases, namely conditions. You see, in case of an employee superannuating after qualifying service of 10 years. Clear? So आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 10 years होना चाहिए. जो यूपीएस में जो अस्योर्ड पेंशन की अस्योर्ड पे आउट आपको मिलने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस वो 10 years होना चाहिए. जिनका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 years होगा उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको अस्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, मगर उनके लिए यूपीएस जो फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा. तो क्लियर? इसमें आप क्लियर हो गए? तो इट मीन्स मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 years होना चाहिए. नेक्स्ट वन, अभी जो फंडामेंटल रूल 56 सबसेक्शन जे में देखिए, अभी गवर्नमेंट ये जो रूल मेरा फंडामेंटल रूल इसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं कि गवर्नमेंट ये नियम किया है कि गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ जो एम्प्लॉइज का सपोज वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है उनका एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट को देखकर उनको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे सकता है. तो इसमें क्या रूल था कि सपोज आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया लेस देन 35 years, ठीक है, तो 35 years के पहले आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, तो जब आपका ईयर्स 50 years एंड मोर होगा तब आपका बेसिकली क्वार्टरली आपका जो सर्विस को रिव्यू किया जाएगा और उसमें आपको गवर्नमेंट वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे सकता है. 3 months नोटिस आपको इश्यू करके आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे सकता है. और नेक्स्ट वन, यदि आप आपका एज मोर देन 35 years है और आप गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया तो बेसिकली जब आपका एज 55 years हो जाएगा एंड मोर तब आपका सर्विस को बेसिकली वेरीफाई किया जाएगा और आपको गवर्नमेंट वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे सकता है. ये फंडामेंटल रूल 56 जे बोल रहा है, ठीक है. तो इसके अंदर यदि आपको गवर्नमेंट इट मीन्स गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन से आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट मिलता है तो इस कंडीशन में भी आपको यूपीएस का फैसिलिटी मिलेगा, मगर इसमें अगेन वही चीज है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 years होना चाहिए. और इसमें जो सपोज ये जो फंडामेंटल रूल 56 जे में आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, सो आप तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपका 10 years हो चुका है, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज कर चुके हो, तो आप रिटायरमेंट जब आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तब से आपको
यूपीएस का जो अस्योर्ड पेंशन है वो आपको मिलेगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट, इसको याद रखना है। यदि गवर्नमेंट आपको इसी फंडामेंटल रूल 56J में ओके आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट देता है और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और आप यूपीएस चूज किया है, तो आपको ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट गवर्नमेंट दे दिया आपको, उसी रिटायरमेंट पीरियड से आपको यूपीएस का जो अस्योर्ड पेंशन है आपको मिलेगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा यदि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का बात आता है, वो तो फंडामेंटल रूल 56J में गवर्नमेंट बेसिकली डिक्लेयर किया है, मगर एक नॉर्मली आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो मगर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर्स होना चाहिए। तो आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, याद रखिए। तब आपको यहां पर जो सपोज आप यूपीएस चूज किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चूज किया है, क्योंकि पहले आपका एनपीएस था, ठीक है, आप अभी यूपीएस चूज किया है और आफ्टर 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, तब आपको कब से यूपीएस का फैसिलिटी मिलेगा, जो अस्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो भी उसका फैसिलिटी है, यूपीएस का जो फैसिलिटी है आपको कब से मिलेगा। मगर यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर दे दिया, फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉई वुड हैव सुपरएनुएटेड इफ द सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यूड टू सुपरएनुएशन। इसमें क्या है, सपोज आपका रिटायरमेंट पीरियड है, सपोज एक इमेजिनरी एग्जांपल, आपका ये सुपरएनुएशन पीरियड है, सपोज जून 30, 2040, ये आपका सुपरएनुएशन, ये आपका सुपरएनुएशन डेट है रिटायरमेंट का। मगर उसके पहले आप ले लिए, सपोज आप फॉर एग्जांपल जून 30, 2037 में आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिए, ओके। मगर इस जून 30, 2037 में आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया और आप 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर चुके हो, तो इस केस में मगर आपको जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो फैसिलिटी मिलेगा, जो अस्योर्ड पेंशन मिलेगा, तब इस डेट के बाद मिलेगा, सुपरएनुएशन डेट के बाद मिलेगा, जून 30, 2040 के बाद मिलेगा। ओके, आप जून 30, 2037 में वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, मगर आपको जो अस्योर्ड पेंशन मिलेगा अंडर यूपीएस, वो जून 30, 2040 के बाद मिलेगा, क्योंकि यह आपका सुपरएनुएशन, एक्चुअली नॉर्मली सुपरएनुएशन पीरियड था जून 30, 2040, मगर उसके पहले आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो आप ले सकते हो। और इसमें क्या है कंडीशन, यदि आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो चुका है, आप सुपरएनुएशन के पहले आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो इस कंडीशन में यदि मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में आपका सुपरएनुएशन डेट है जून 30, 2040, तो उसके बाद ही आपको अस्योर्ड पेंशन मिलेगा। ओके, जिस डेट में सपोज आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया सुपरएनुएशन के पहले, उसी डेट से आपको अस्योर्ड पेंशन अंडर यूपीएस आपको नहीं मिलेगा। जो आपका सुपरएनुएशन ओके डेट था, उसी से आपको यूपीएस का फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि ए फंडामेंटल रूल 56J में यदि गवर्नमेंट आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट देता है, ठीक है, यदि गवर्नमेंट आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट देता है, तो जिस डेट में आपका रिटायरमेंट होगा, सपोज आपको रिटायरमेंट गवर्नमेंट दे दिया, जैसे सपोज गवर्नमेंट आपको जुलाई 31, 2029 में ओके आपको गवर्नमेंट वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे दिया, ठीक है, ये अंडर फंडामेंटल रूल 56J के माध्यम से। तो इसमें क्या है, जिस डेट में, इसी डेट में आप रिटायरमेंट ले लिया, तो तब से आपको यूपीएस फैसिलिटी मिलेगा, जो अस्योर्ड पेंशन है यूपीएस अंडर में आपको मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन चूज किया है। पहले आपका एनपीएस था, आपको यूनिफाइड पेंशन लेने के लिए आप चूज किया है, और आपका मिनिमम 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मगर इसी डेट से होगा। मगर आप खुद वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो, तो ये केस में आप खुद वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो,
तो आप सुपरएनुएशन के पहले ले सकते हो, ठीक है। मगर आपको जो यूपीएस का जो बेनिफिट मिलेगा, जो नॉर्मली आपका सुपरएनुएशन डेट है, ओके, उससे ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि मैं सुपरएनुएशन के पहले में रिटायरमेंट ले लिया और जिस डेट में मैं रिटायरमेंट लिया उसी डेट से मुझे यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा, नहीं। तो नॉर्मली आप खुद वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, तो उस केस में आप ले सकते हो। मगर जब जो आपका सुपरएनुएशन डेट है उसी से ही आपको यूपीएस का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। मगर यदि गवर्नमेंट आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट देता है फंडामेंटल रूल 56J में, तो जिस डेट में आपको वो रिटायरमेंट देता है उसी डेट से आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि आप रेजिग्नेशन दे देते हो और आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगता है, डिसमिसल है, रिमूवल है, आपको कर दिया जाता है, तब आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं हो। यूपीएस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, याद रखो। यदि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, कि सपोज आपको मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा लाइक डिसमिसल एंड रिमूवल, तो इस केस में आप यूपीएस के लिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये ऑप्शन आप चूज किया था, मगर अभी आपको सपोज रिमूव कर दिया गया जॉब से, कि डिसमिस कर दिया गया, कि आप रेजिग्नेशन दे दिए, मगर आप यूपीएस चूज किया था, मगर फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। याद रखिए, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूवल केस में यूपीएस का जो फैसिलिटी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो फैसिलिटी है, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, तो उसमें जो फुल अस्योर्ड पे आउट आपको मिलेगा, जैसे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जिनका 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, आपका जॉब 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन है कि 25 ईयर्स जॉब। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स हो जाता है, तब आपका जो बेसिक पे होगा, जो सुपरएनुएशन के पहले, जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन, 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे, लास्ट मंथ का बेसिक पे हम नहीं लेंगे, 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन, उसका 50%, ठीक है, वो फिक्स होगा। और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। डियरनेस रिलीफ इक्विवेलेंट है, जैसे हमको अभी डीए मिल रहा है 53%, वैसा ही आपको जो डियरनेस रिलीफ होगा वो डियरनेस अलाउंस के साथ समान होगा, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है, यदि आप 25 ईयर्स जॉब कंप्लीट करते हो, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स कंप्लीट होता है, तो आपका जो ये फुल अस्योर्ड पे आउट होगा। फुल अस्योर्ड पे आउट मींस आपका सुपरएनुएशन के पहले जो 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे हम लेंगे, उसका 50% आपको मिलेगा। वही दे दिया, द रेट ऑफ फुल अस्योर्ड पे आउट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फुल अस्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथली, you see 12 monthly average basic pay immediately prior to superannuation, और full assured payout is payable after a minimum 25 years of qualifying service। इसमें मैं थोड़ा क्वालिफाई कर देता हूं, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 इयर्स के बाद आपको अस्योर्ड पेंशन मिलेगा, मगर फुल अस्योर्ड पेंशन कब मिलेगा? फुल अस्योर्ड पेंशन के लिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 इयर्स एंड मोर होना चाहिए। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 इयर्स एंड मोर हो जाता है, ठीक है, इस केस में जस्ट सुपरएनुएशन के पहले आपका 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे, ठीक है, 12 मंथ्स का बेसिक पे को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे उसका 50%, ठीक है, वो आपका पेंशन फिक्स होगा और उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। और यदि लेस होता है, सपोज आपका इस केस में, सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट केस तो क्लियर हो गया, सेकंड केस में सपोज आपका 23 इयर्स जॉब होता है, क्वालिफाइंग सर्विस 23 इयर्स है, जब आपका सुपरएनुएशन आ जाता है उस समय देखा गया आपका टोटल जब 23 इयर्स है, तब आपको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा।
प्रोपोर्शनेट पे आउट में मैं तो आगे में बहुत कैलकुलेशन दे दूंगा आपको, बहुत कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल है, पर इसमें मैं बोलता हूं 23 ईयर्स होगा तो यहां पर आपको 46% किसका ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे ए बी पे एवरेज बेसिक पे 12 मंथ्स जस्ट सुपर अन्वेषण के पहले। तो कैलकुलेशन में आगे मैं बताऊंगा। तो उसमें वही है, प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे मिनिमम 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस हो गया तो जस्ट सुपर अन्वेषण के पहले 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे उसका हाफ हम लेते हैं, वही बेसिक पे फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे 25 ईयर्स में 50% है, पर ईयर हम 2% है, तो उसके हिसाब से यदि आपका क्वालिफाइंग जब सुपर अन्वेषण के टाइम में यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स होता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा आपको जो सुपर अन्वेषण के पहले 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे हम कैलकुलेट करेंगे उसका 46%, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 46% वो फिक्स होगा और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मगर इसमें थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप अस्योर्ड पेंशन चाहते हो अंडर यूपीएस, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। यदि फुल अस्योर्ड पे आउट आप चाहते हो, फुल अस्योर्ड पे आउट मीन्स 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ये जो फिक्स होगा यही है फुल अस्योर्ड पे आउट। ठीक है, और उसके लिए आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। यदि 25 ईयर से कम होगा तो आपको प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, आगे में हम कैलकुलेशन देखेंगे। नेक्स्ट वन यहां पर एक दे दिया, एक मिनिमम गारंटेड पेंशन आपको मिलेगा, जो मिनिमम होगा 10,000, मिनिमम जो फिक्स होगा ₹10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो मिनिमम जो पेंशन आपका फिक्स होगा वो 10,000 से कम नहीं होगा, तो वही दे दिया, मिनिमम गारंटेड पे आउट ऑफ ₹10,000 पर मंथ शैल बी assured in case superannuation is after 10 years or more of qualifying service। ठीक है, क्लियर। तो मिनिमम गारंटेड पे आउट होगा ₹10,000 इसमें, और थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं, यहां पर जो दे दिया कि मिनिमम गारंटेड पे आउट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो इट मींस आपका जो मिनिमम पेंशन होगा वो ₹10,000 होगा। पेंशन में क्या होता है, बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ। पेंशन क्या होगा, जो बेसिक पे, ये जो बेसिक पे कैसे हम लेंगे, सुपर अन्वेषण के पहले 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। ठीक है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ इक्विवेलेंट होगा डीए के साथ। तो ये हम कैलकुलेट करने के बाद 10,000 से कम नहीं होगा। क्लियर, 10,000 से कम नहीं होगा पेंशन। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट। तो आपका जो सुपर अन्वेषण के पहले आप 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ, ये 10,000 से कम नहीं होगा। तो इट मींस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि गारंटेड आपको वो ₹10,000 पर मंथ पे आउट देगा। और कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पे आउट मींस एक्चुअली वो दोनों बेसिक पे 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर अन्वेषण प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलाकर 10,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट केस में वही है, यदि आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, यहां पर भी बता दिया कि सपोज आपका सुपर अन्वेषण डेट नहीं आया है, तो आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया आफ्टर कंडीशन मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, नहीं तो आपको यूपीएस का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे आपका सुपर अन्वेषण डेट में इमेजिनरी एग्जांपल बताया था कि ये सुपर अन्वेषण डेट है 30 जून 2040, मगर इसके पहले आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया 30 जून 2038, और इसमें क्या होगा,
ना इसमें आपका ऑलरेडी 25 ईयर्स, मिनिमम 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम 25 ईयर्स, बिकॉज खुद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, आपको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, आप खुद ले रहे हो, और उसमें आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तब इस केस में आपको यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फैसिलिटी मिलेगा, अस्योर्ड पेंशन, जो फुल अस्योर्ड पेंशन मिलेगा। मगर कब से मिलेगा? मिलेगा एक्चुअली आपको 30 जून 2040 के बाद। मगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए 30 जून 2038, मगर यहां से आपको 30 जून 2038 मींस आप बोल रहे हो कि यहां से आप फ्रॉम रिटायरमेंट एक्चुअली आपको मिल जाएगा, वॉलंटरी फ्रॉम वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको जो यूपीएस का फैसिलिटी मिलेगा वो आपका जो सुपरएनुएशन डेट है उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। डेथ केस में ये बोल दिया डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर आफ्टर सुपरएनुएशन। आफ्टर सुपरएनुएशन ये नहीं बोला है कि आप जॉब में हो आपका डेथ हो गया, तो ऐसे में तो जॉब में हो आपका डेथ हो गया तो बेसिकली आपका फैमिली को ओल्ड पेंशन मिलेगा, ये एनपीएस में ऑलरेडी है, आप ऑप्शन दिया है तो आपको फैमिली पेंशन मिलेगा आपका फैमिली को, है कि नहीं। पर इसमें दे दिया कि डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर आफ्टर सुपरएनुएशन, सुपरएनुएशन के बाद आपका डेथ हो जाता है, तब इस केस में जितना आपका जो बेसिक पे, सपोज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आफ्टर सुपरएनुएशन, ठीक है, आफ्टर सुपरएनुएशन आपका सपोज आपका ये सुपरएनुएशन डेट 30 जून 2040, एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लो, ये सुपरएनुएशन डेट यहां पर आरो मार्क दे दिया, ये सुपरएनुएशन डेट था, तो यहां पर जो बेसिक पे फिक्स हुआ, जैसे एवरेज 12 मंथ्स बेसिक पे, तो एवरेज जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन, तो एवरेज 12 मंथ्स बेसिक पे सपोज आपका ये फिक्स हुआ, सपोज आपका 2 लाख है, ठीक है, एवरेज 12 मंथ्स बेसिक पे 2 लाख है, तो आपका कितना फिक्स होगा, इसका हाफ कर दो, एवरेज 12 मंथ्स बेसिक पे का कितना कर दो, 50% कर दो बेसिक पे, तो उसका 50% ले जाओ, 50% ऑफ 2 लाख कितना हो गया, 1 लाख, यही है, ये बेसिक पे है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डियरनेस रिलीफ मिलेगा, जो ये इक्विवेलेंट होगा डीए के साथ, है कि नहीं। मगर जब आप सपोज आपका डेथ हो जाता है आफ्टर सुपरएनुएशन, तो आपका फैमिली का जो बेसिक पे फिक्स होगा पेंशन का वो 60,000 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका 60% होगा। 60% कैसे, अभी आपका जो पेंशन का बेसिक पे है वो 1 लाख है, आप याद रखिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया आप 25 इयर्स सर्विस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ऐसे लिया, इमेजिनरी एग्जांपल, और थोड़ा उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे जब आपका सुपरएनुएशन हुआ, इसी बेसिक पे के ऊपर 1 लाख प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिल रहा है, ये यदि आपका डेथ हो जाता है, ये आफ्टर सुपरएनुएशन, ठीक है, और यदि आपका डेथ हो जाता है तो आपका फैमिली को जो लीगल जो आपका वाइफ को कितना मिलेगा ना, 60, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है, ये जो बेसिक पे 60,000 हो जाएगा, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल दिया, यदि आफ्टर सुपरएनुएशन आपका डेथ होता है तो आपका जो पेंशन का जो बेसिक पे था उस मिल रहा था आपको, जैसे मेरा एग्जांपल में 1 लाख मिल रहा था आपको बेसिक पे, पेंशन का जो बेसिक पे था 1 लाख था, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिल रहा था। यदि आपका डेथ हो गया, आपका वाइफ को कितना बेसिक पे फिक्स होगा, 60,000, यानी 1 लाख का 60% और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ठीक है, क्लियर। मगर ये दिया है आफ्टर सुपरएनुएशन, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। डियरनेस रिलीफ के ऊपर वही बता दिया, डियरनेस रिलीफ इक्विवेलेंट होगा डीए के साथ, जो डियरनेस रिलीफ होगा वो डीए के साथ, जो डियरनेस अलाउंस के साथ समान होगा, ओके। द डियरनेस रिलीफ विल बी वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज डियरनेस अलाउंस applicable to serving employees, okay. Dearness relief will be payable only when payout commences,
जब आपका पेंशन फिक्स होगा तो जितना पेंशन फिक्स होगा ओके उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो जो पे आउट जब कमेंस होगा आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो नॉर्मली यहां पर याद रखना है कि डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस दोनों इक्विवेलेंट होकर चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। यहां पर और एक मजा बात दे दिया कि आपको एक लॉम्प सम पेमेंट दे देगा वो। अच्छा, ये लॉम्प सम पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको दो तीन चीज मैं बता देता हूं। इसमें आपको क्वालिफाइंग सर्विस देखना है। फर्स्ट वन आपका सपोज फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग सर्विस आपका 30 ईयर्स है। ठीक है, आपका जो रिटायरमेंट के टाइम में बेसिक पे ओके आपका जो लास्ट बेसिक पे सपोज लास्ट बेसिक पे आपका 2 लाख है और उसी समय आपका डियरनेस अलाउंस सपोज 50% है। ठीक है, तो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। क्वालिफाइंग सर्विस अब हाफ ईयर्स तो 60 हाफ ईयर्स हो जाएगा। 60 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, तो अभी जो आपको जो लॉम्प सम पेमेंट मिलेगा, ये जो लॉम्प सम पेमेंट मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या है ना, 10% ऑफ, ठीक है, लास्ट बेसिक पे जब आपका रिटायरमेंट हुआ प्लस उसके ऊपर डीए, ठीक है, इनटू हाउ मेनी, सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 30 ईयर्स है, सो उसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स मींस 60 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस इनटू 60। इससे ऐसे कैलकुलेट करने से आपको एक लॉम्प सम अमाउंट मिल जाएगा, लॉम्प सम पेमेंट मिलेगा जो आपका अश्योर्ड पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? तो मेरा एग्जांपल क्लियर हो गया। आपका क्वालिफाइंग सर्विस आप देख लीजिए, कितना क्वालिफाइंग सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए हाफ ईयर्स में, वो 60 हाफ ईयर्स हो गया। मैं यहां पर अंडरलाइन कर दिया 60 हाफ ईयर्स। ठीक है, और बाकी लास्ट बेसिक पे आपका 2 लाख था और उसके ऊपर डीए, सपोज डीए फॉर इमेजिनरी एग्जांपल डीए 50% है, तो आप यहां पर कैलकुलेट कर दीजिए बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% ले जाइए, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, ठीक है, बेसिक पे 2 लाख है, डियरनेस अलाउंस 50% है, उसके हिसाब से बेसिक पे प्लस डीए निकाल दीजिए, उसका 10% लीजिए इनटू हाफ ईयर्स। ओके, हाउ मेनी हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 30 ईयर्स मीन 60 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस इनटू 60, तो एक लॉम्प सम अमाउंट मिलेगा और वो आपका अश्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसके हिसाब से यदि आपको फंडामेंटल रूल 56J में यदि आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट देता है कि आप जैसे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हो आफ्टर 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, ऐसे आपको एक लॉम्प सम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, मगर आपको ये जो लॉम्प सम पेमेंट वही यूपीएस के अंदर है, मगर आपको यूपीएस फैसिलिटी आपको कब मिलेगा, जब आपका क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 10 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन दिया है लॉम्प सम पेमेंट का। जैसे एक एग्जांपल, यहां पर बेसिक पे 45,000 है और डियरनेस अलाउंस 53%, तो बेसिक पे के ऊपर डीए हो गया 23,850, तो टोटल एमोलुमेंट्स हो गया 68,850। तो उसमें क्या कीजिए ना, उसका 10% ले जाइए, इसका 10% ले जाइए। ठीक है, और आपका क्वालिफाइंग सर्विस देख लीजिए इनटू एल, एल मींस क्वालिफाइंग सर्विस को आप कन्वर्ट कर दीजिए हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। ओके, हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। सपोज जैसे आपका जॉब, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जॉब 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, तो कितना हाफ ईयर हो जाएगा, 50 हाफ ईयर क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट कीजिए। मैं एक टेबल आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला है लॉम्प सम अमाउंट का, ये फॉर्मूला है। ये एमोलुमेंट्स है, ये जो एमोलुमेंट्स है ये लास्ट बेसिक पे और उसके ऊपर जो डीए, ठीक है, और उसका 10% लेना है इनटू एल। एल मींस नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 6 मंथली मींस सपोज आप 27 ईयर्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस है, क्यूएस कर दिया क्वालिफाइंग सर्विस है, को कितना नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना होगा ना, 50 ईयर्स हाफ ईयर क्वालिफाइंग सर्विस। तो एल मींस ए, एल मींस ए 54 है,
एल मीन्स यही 54 है, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लीजिए, तो ये एमोलुमेंट्स है, बेसिक पे प्लस डी है, उसका 10% लेना है और इंटू एल। एल मीन्स जितना क्वालिफाइंग सर्विस है, सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है तो एल कितना होगा, 40 होगा। तो ऐसे करके आपको लॉमसम अमाउंट निकाल दीजिए। और ये जो लॉमसम अमाउंट आपका क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एल सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स है तब एल हो जाएगा 44, क्योंकि 44 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, क्लियर। तो ये लॉमसम अमाउंट जो मिलेगा वो एक्चुअली आपका अस्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा। मगर आप देखा होगा ओल्ड पेंशन में क्या होता था, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था उसको गवर्नमेंट पूरा इंटरेस्ट के साथ वो रिटर्न कर देता था, उससे हम विथड्रॉल करते थे, एडवांस लेते थे, ये सब जीपीएफ के ऊपर जाओ। मगर ये हम कंफर्म थे कि ओल्ड पेंशन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था विथ इंटरेस्ट हमको रिटर्न मिलता था। मगर यहां पर क्या है होगा कि एक लॉम सम अमाउंट आपको देगा लास्ट जब आप सुपर एनुएशन जब आप रिटायर कर रहे हो उस समय आपका एमोलुमेंट्स क्या है, एमोलुमेंट्स का 10%, एमोलुमेंट्स मींस बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10%, और एल मींस जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसी का एक टेबल में बना दिया, देखिए यहां पर जैसे आपका एमोलुमेंट्स 68,850, ठीक है, तो उसका 10% 6885, तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स मींस आपका हाफ ईयर्स कितना होगा 20, तो ए है, एल का वैल्यू ए है 20, तो उसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6885 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 10% ऑफ एमोलुमेंट्स कितना हुआ 6885 इंटू 20, ये हो जाएगा 6885 इंटू 30, वो 15 ईयर सर्विस है। यहां पर हो जाएगा जैसे आपका 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है 6885 इंटू 40, तो ये सब लमसम अमाउंट ऐसे आपको मिलेगा, क्लियर। ये एक टेबल में कर दिया, तो यही एल का वैल्यू यही है एल, नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स, लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, नंबर ऑफ मंथ्स कंट्रीब्यूशन नहीं, यहां पर क्या है, इसी को एल ले लीजिए, इसको एल लेने से आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मंथ्स कर दिया, ये इसको एल मत लीजिए, इसी को देखिए, इसको आपको, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए यही है, ये एल आपको नहीं लेना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स के आकार में आप लीजिए, ठीक है। जो 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करने से 20 आ जाएगा, तो आपका 10% ऑफ एमोलुमेंट्स 6885 है, उसमें आप 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो यही है नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स, यही एल है, ये एल नहीं है, ये गलत है, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स सिंबल एल है, तो ठीक है। तो 10% ऑफ बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे प्लस डीए इंटू हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, जो जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन कुछ नोट को चलेंगे, तो इसमें नो लॉमसम, यदि आपका सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस, इसमें देखिए आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर्स होता है कि लेस देन 120 मंथ्स होता है, तब आपको ये लॉमसम अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए, तो 10 ईयर्स मींस हाउ मेनी मंथ्स, 120 मंथ्स। यदि आपका जॉब लेस देन 10 ईयर्स है, जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर्स है, कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 120 मंथ्स है, तब आपको ये लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएस का बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगा, तो यूपीएस बेनिफिट में ये लमसम अमाउंट एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लमसम पेमेंट जो आपको मिलेगा वो आपका अस्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा, आज यूजुअल आपको अस्योर्ड पेंशन मिलेगा और ये लमसम पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉर्पस को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस अंडर द यूपीएस 2 फंड्स में बता चुका हूं, ये एक फंड रिलेटेड स्कीम है, 2 फंड्स है, एक इंडिविजुअल कॉर्पस फंड है।
इंडिविजुअल कॉर्पस में दोनों का शेयर आएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% होगा। ये 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? बेसिक पे प्लस डीए। और 10% आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो दोनों क्रेडिट होगा इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में, आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में क्रेडिट होगा। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ ईच 10%। ठीक है, और एक है पूल कॉर्पस है। पूल कॉर्पस क्या है? पूल कॉर्पस में एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 8.5% होगा। टोटल देखिए, टोटल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ना? 18.5% होगा। मगर इंडिविजुअल कॉर्पस में, आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस में 10% होगा। और जो एडिशनल जो पूल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस में सपोज पीसी ले लिया, पूल कॉर्पस में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 8.5% होगा। ठीक है, तो पूल कॉर्पस में ओनली एडिशनल कंट्रीब्यूशन ओनली गवर्नमेंट का रहेगा। मगर इंडिविजुअल कॉर्पस में, अभी इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में दोनों का रहेगा, 10% रहेगा एम्प्लॉय का, 10% रहेगा गवर्नमेंट का। ये 10% रहेगा एम्प्लॉय का। ये इंडिविजुअल कॉर्पस है। और जो पूल कॉर्पस है इसमें एडिशनल 8.5% रहेगा, ओनली गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, ये एक एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है कि एम्प्लॉइज को अस्योर्ड पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो अस्योर्ड पेंशन को सपोर्ट करने के लिए एक एडिशनल 8.5% गवर्नमेंट दे रहा है। किसके ऊपर दे रहा है? वही बेसिक पे प्लस डीए के ऊपर दे रहा है। तो वो पूल कॉर्पस के ऊपर आएगा, पूल कॉर्पस। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज को थोड़ा आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक पॉइंट दिया है, द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मींस वही जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एडिशनल 8.5% इज फॉर सपोर्टिंग अस्योर्ड पे आउट्स अंडर द यूपीएस ऑप्शन। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट चॉइस को चलेंगे फॉर द इंडिविजुअल कॉर्पस में। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, आप इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है? एम्प्लॉय का शेयर है, हमारा शेयर है 10%। तो एम्प्लॉय जो हम चूज करेंगे, हम जो इंडिविजुअल बेसिकली हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंडिविजुअल कॉर्पस में है। इंडिविजुअल कॉर्पस में दोनों का है, इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का है और इंडिविजुअल कॉर्पस में गवर्नमेंट का है, 10% ईच। तो हम हमारा पार्ट को हम चूज करेंगे। द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर द इंडिविजुअल। अच्छा, यहां पर एक मजा बात है दे दिया, जो इंडिविजुअल कॉर्पस के लिए जो आपका, देखिए यहां पर लिख देता हूं, एम्प्लॉय का 10% प्लस गवर्नमेंट का 10%, ये कहां पर इन्वेस्ट होगा? तो वो जो इन्वेस्टमेंट चॉइस किसके पास रहेगा? इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगा एम्प्लॉय के पास रहेगा। ये दोनों, जो हमारा जो 10% कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का जो 10% कंट्रीब्यूशन है, वो कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा? इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेगा एम्प्लॉय के पास। आप ही डिसाइड करेंगे। ओके, आपका 10% और गवर्नमेंट का 10%। तो बेसिकली इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों का होता है। तो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहां पर होगा? पर्टिकुलरली कौन डिसाइड करेगा? कंसर्न एम्प्लॉय डिसाइड करेगा। और उसको रेगुलेट कौन करेगा? पीएफआरडीए रेगुलेट करेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। क्योंकि अभी आप जानते हो जो एनपीएस को मैनेज करता है वही है पीएफआरडीए, पेंशन फंड। ठीक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से। मगर यहां पर जो एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट का 10% कंट्रीब्यूशन आता है इंडिविजुअल कॉर्पस में, उसको एम्प्लॉय डिसाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट चॉइस लेगा। ओके, और एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, आप यदि इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं करोगे, इसको आप चॉइस नहीं किया कि कहां पर आप इन्वेस्ट करोगे, आप चॉइस नहीं दिया, तो आपका वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा। डिफॉल्ट पैटर्न टाइम बाय टाइम उसको कौन डिसाइड करता है? पीएफआरडीए। तो वही दिया है, इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सरसाइज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस, यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा, डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, आगे में मैं डिस्कस करूंगा।
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस किस, जो इंडिविजुअल कॉर्पस में, देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस में जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है, जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो किसके पास है, वो बेसिकली एम्प्लॉय के पास है। ओके, और दोनों का इसमें 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस 10% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों आ जाता है इंडिविजुअल कॉर्पस में। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट चॉइस रखेगा वो एम्प्लॉय, यदि वो कुछ चॉइस नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो पूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस क्या है, पूल कॉर्पस गवर्नमेंट का एडिशनल एक कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना था 8.5%, और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। ओके, पूल कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो सोली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहां पर इन्वेस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली इंडिविजुअल कॉर्पस जो है, जो 10% एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका इन्वेस्टमेंट चॉइस एम्प्लॉय के पास रहेगा। यदि वो चॉइस नहीं करेगा वो तो डिफॉल्ट पैटर्न में जाएगा। मगर जो पूल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस में एडिशनल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 8.5% होता है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट चॉइस किसके पास रहेगा, सोली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और यहां पर और एक बात दे दिया कि रिटायर्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, मगर जिनका एनपीएस था और वो ऑलरेडी इसके पहले रिटायर कर चुके हैं, इसके पहले रिटायर कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद एनपीएस था। सपोज इसी जो ऑपरेशन अभी ये जो यूपीएस जो ऑपरेशनल होगा वो 1 अप्रैल से, उसके पहले सपोज जो एम्प्लॉइज का रिटायर्ड हो चुका है, यदि वो ऑप्शन चूज करते हैं यूपीएस, उनको भी यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। मगर यहां पर क्या है, क्योंकि वो विथड्रॉल कर चुके हैं, यहां पर देखिए रिटायर्ड लोगों के लिए भी होगा। मगर यदि आप जानते हो कि एनपीएस में रूल है 60% आप विथड्रॉ करोगे और 40% एन्युटी शेयर, तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद उनको टॉप अप अमाउंट का एक पेंशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रिटायर्ड लोग जिनका एनपीएस था और इसका ऑपरेशनल के पहले उनका रिटायरमेंट हो चुका है, उनके लिए भी ऑप्शन होगा। यदि वो यूपीएस को चूज करते हैं तो वो जो विथड्रॉल कर चुके हैं, जो एनपीएस अकाउंट से विथड्रॉल कर चुके हैं और जो एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसको एडजस्टमेंट करके, ठीक है, पीएफआरडीए उसको एडजस्टमेंट करेगा, तो उसके बाद उनको जो वो जो विथड्रॉल कर चुके हैं उसको एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यूपीएस का रूल कैसा है, तो एनपीएस में आप जानते हो रिटायरमेंट टाइम में 60% मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम 60%, और 40% कंपल्सरी आपको एन्युटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। यदि वो विथड्रॉल किया है तो उसको एडजस्ट करेगा पीएफआरडी, और सब एडजस्टमेंट के बाद आपको एक टॉप अप अमाउंट के आकार में आपको अश्योर्ड पेंशन देगा। ठीक है, ये मजा बात है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए भी, जो जिनका एनपीएस था, यूपीएस का ऑपरेशनल का पहले उनका रिटायरमेंट हो रहा है, उनको भी यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट वन आइदर यूपीएस और एनपीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया क्योंकि कंडीशन है कि जिनका की कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है जी, फर्स्ट वन कंपल्सरी जिनका एनपीएस है, ठीक है, 2004 के बाद जिनका एनपीएस है उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो वही एनपीएस को चूज करेंगे और यूपीएस को चूज करेंगे। ठीक है, आइदर एक को चूज करेंगे, और सपोज वो यूपीएस को चूज किया, उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको मानना पड़ेगा और फाइनल होगा। एक बार आप चूज किया मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आप चूज किया मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको चूज किया फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं एनपीएस में शिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो एक बार आप चूज किया मीन्स वो वही फाइनल है। तो आइदर एनपीएस और यूपीएस, जो एक को आप चूज कीजिए और एक बार ही चॉइस आपको मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका तो एनपीएस है, एनपीएस में प्राण है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, यहां पर दे दिया
कि आउटस्टैंडिंग नेशनल पेंशन सिस्टम कॉर्पस, जो एनपीएस का कॉर्पस है, वो ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस को। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इंडिविजुअल कॉर्पस है और पूल कॉर्पस है, तो दोनों में से किसमें आपका जो आउटस्टैंडिंग है एनपीएस का, अभी जो वैल्यू है, आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है एनपीएस में, वो ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस को, याद रखिए। तो आपका जो इस, यदि आप यूपीएस को चूज किया, जो एनपीएस का आउटस्टैंडिंग है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर ना, इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस को, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस को ट्रांसफर हो जाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है ना, आपका 10%, एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 10%, दोनों क्रेडिट होता है इंडिविजुअल कॉर्पस में। ओके, पूल कॉर्पस में जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का 8.5%, मैं बता चुका हूं, दो प्रकार का फंड, आईसी और पीसी, पूल कॉर्पस। मगर ये जो एनपीएस का अभी आउटस्टैंडिंग है, जो आप जैसे लागू होगा यूपीएस, आप यूपीएस चूज किया 1 अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल होगा, तो आपका एनपीएस में, सपोज आपका एनपीएस में अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सपोज आपका 40 लाख से, ठीक है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस को, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट, जो प्राण में, इसको प्राण बोलते हैं ना, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इसमें जो आपका 40 लाख था, यह भी ट्रांसफर होकर इंडिविजुअल कॉर्पस में आ जाएगा। जो इंडिविजुअल कॉर्पस किसका है, यूपीएस का है, क्योंकि आप यूपीएस चूज किया। ठीक है, और यहां पर एक देखिए, एक बेंचमार्क कॉर्पस है, ये एक थर्ड टाइप है। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफॉल्ट ऑप्शन, ये बेसिकली ये जो बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड इन सच मैनर आज मे बी डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडीए। ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है, उसका जो कंप्यूटेशन होगा, उसका कैसे, माने व्हाट इज द वे टू कंप्यूट बेंचमार्क कॉर्पस, एक्चुअली इट इज डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडीए। उसका जो कंप्यूटेशन होगा वो पीएफआरडीए के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बेंचमार्क कॉर्पस, राइट। मगर उसमें बेंचमार्क, इसमें कुछ अजम्पशंस दे दिया, ये अजम्पशंस को हिसाब से बेंचमार्क कॉर्पस को, जिसको बीसी बोलते हैं, बेंचमार्क कॉर्पस को कौन डिटरमाइन करेगा, पीएफआरडीए करेगा। ठीक है, आगे में कैलकुलेशन में भी देखेंगे। सपोज यहां पर देखिए 3 कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट वन, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, मंथली कंट्रीब्यूशन, वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशंस फॉर बोथ द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर फॉर ईच मंथ क्वालिफाइंग सर्विस। एवरी मंथ में कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का 10%, गवर्नमेंट का 10%, वो रेगुलरली, टाइमली वो कंट्रीब्यूशन, वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन टाइमली होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यदि कुछ कंट्रीब्यूशन मिसिंग होता है, तब वो पीएफआरडीए डिसाइड करेगा, वो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू डिसाइड करेगा। ये जो बीसी, जो बेंच मार्क जो कॉर्पस है ना, ये इसको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू पीएफआरडीए डिसाइड करेगा। यदि आपका कंट्रीब्यूशन मिसिंग होता है, कुछ मंथ्स में आपका कंट्रीब्यूशन मिसिंग होता है, आपका कंट्रीब्यूशन मिसिंग होगा मीन्स आप एम्प्लॉय का और गवर्नमेंट का दोनों मिसिंग होगा। ठीक है, तो मिसिंग होगा मीन्स वहां पर एक जो अप्रोप्रिएट वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस के लिए एक अप्रोप्रिएट वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, पीएफआरडीए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिफॉल्ट पैटर्न, कभी कभी क्या है, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आपके लिए 2 चॉइस है, एक है आप खुद इन्वेस्टमेंट चॉइस करो, आप खुद इन्वेस्टमेंट चॉइस करो कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 10%, है ना, तो आप चॉइस करो कहां पर इन्वेस्ट होगा। अदरवाइज और एक है डिफॉल्ट, यदि आप चूज नहीं करोगे, आप कुछ जो इन्वेस्टमेंट चॉइस आप नहीं दोगे, तो डिफॉल्ट पैटर्न है। डिफॉल्ट पैटर्न कौन डिसाइड करता है, टाइम टू टाइम डिसाइड बाय द पीएफआरडीए। तो बेसिकली ये जो बेंचमार्क कॉर्पस होता है वो डिफॉल्ट पैटर्न में ही डिसाइड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि डिफॉल्ट, एक्चुअली वो डिफॉल्ट पैटर्न को ही फॉलो करता है बेंचमार्क कॉर्पस। कभी कभी क्या है, सपोज आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, देखिए यहां पर ये बेंचमार्क कॉर्पस हो गया सपोज 55 लाख,
मगर जो आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया था इंडिविजुअल कॉर्पस में, आप जो इन्वेस्टमेंट चॉइस किया था, सपोज वो हो गया 50 लाख। अब जो, ठीक है कि नहीं, बेंचमार्क कॉर्पस ये है, ये डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से, ये आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस के हिसाब से है, ये ऐसे हो सकता है। तो यहां पर क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस से ज्यादा है। कि कभी ये भी हो सकता है, जैसे आप चॉइस किया, इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो 55 लाख से, मगर यहां पर बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख से। बेंचमार्क ये डिफॉल्ट पैटर्न है, ये डिफॉल्ट पैटर्न है, ठीक है नहीं, तो ये 50 लाख है, ये हो सकता है। अभी क्लियर ऑन स्टूडेंट नॉट। मगर इसमें और एक मजा, यदि आप डिफॉल्ट, आपको चॉइस नहीं दिया, आप बोला कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दे रहा हूं, तो जो आप डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया, तो ये जो 10% आपका और 10% गवर्नमेंट का, ठीक है, ये जो इन्वेस्ट होगा वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्ट होगा। तो इसमें एक्चुअली ये दोनों समान रहेगा। क्या है ना, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस और जो बेंचमार्क कॉर्पस दोनों समान रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मगर आप यदि चॉइस लेते हो, आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस हो जाता है, तब आपका बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस डिफॉल्ट पैटर्न है, याद रखो, डिफॉल्ट पैटर्न है। और यदि आप जो इंडिविजुअल कॉर्पस का आप चॉइस लेते हो, आपके लिए दो ऑप्शन है, आप चॉइस में जाते हो तो इसमें वैरी कर सकता है, ठीक है। यदि आप इसको भी डिफॉल्ट ले लिया, इंडिविजुअल कॉर्पस आपका डिफॉल्ट पैटर्न हो गया, तो वो दोनों समान हो जाएगा, ठीक है। तो वही दिया है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड एज पर द डिफॉल्ट। तो आपको याद रखिए, सभी समय जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिफॉल्ट पैटर्न है, डिफॉल्ट पैटर्न है, ठीक है। तो आगे में हम कैलकुलेशन में और आगे में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। यहां पर जो दे दिया, एवरी मंथ में, सपोज आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस में एवरी मंथ में आपको डाटा मिलेगा कि आपका वैल्यू कितना है और यूनिट्स कितना है, ये इसका डाटा मिलेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है तो वैल्यू और यूनिट्स, और उसका बेंचमार्क, ये भी बेंचमार्क कॉर्पस का भी वैल्यू यूनिट्स मिलेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया है। आप जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो आपका 10% और गवर्नमेंट का 10% है, आप उसका चॉइस करके इन्वेस्ट किया है, तो उसमें क्या वैल्यू और यूनिट्स है। और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू, और ये जो बेंचमार्क कॉर्पस किस में आता है, तो डिफॉल्ट पैटर्न में। डिफॉल्ट पैटर्न को कौन डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है पीएफआरडी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट चॉइस में आपका वैल्यू यूनिट्स कितना है और बेंचमार्क कॉर्पस में वैल्यू और यूनिट्स कितना है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एवरी मंथ में। जैसे अभी एनपीएस में हमको मिल जाता है इंफॉर्मेशन, आप आपका अकाउंट ओपन करके देखिए, आप अभी कितना यूनिट्स का शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट हुआ है और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है। मगर यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करोगे तो उसका वैल्यू और यूनिट्स और बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स, ठीक है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। मगर सभी समय याद रखिए, जो इन्वेस्टमेंट चॉइस का वैल्यू और यूनिट सभी समय इसके साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होना चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स है वो डिफॉल्ट पैटर्न है। आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया, इसमें डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया गया, और उसमें जो वैल्यू और यूनिट्स है, यदि आप चूज किया, आप खुद चूज किया, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट प्लान को आप खुद चूज किया, उसका वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का जो डिफॉल्ट पैटर्न के साथ हम कंपेयर करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आर्ट सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट द अच्छा, आपका क्वालिफाइंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लॉम सम अमाउंट मिलेगा, जैसे आपका क्वालिफाइंग सर्विस, सपोज अभी क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर से, इसको कौन डिसाइड करेगा, बाय द हेड ऑफ ऑफिस। तो क्वालिफाइंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस यदि 25 ईयर्स हो जाता है, तो आपका जो एवरेज बेसिक पे है, लास्ट 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% फिक्स होता है, नहीं कि 25 ईयर्स होता है, नहीं तो प्रोपोर्शनेट,
यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से कम होगा तो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे को फिक्स किया जाता है कि नहीं। तो इसको आपको याद रखना है। तो आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, वो ही डिसाइड करेगा क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, वो डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे इन केस वैल्यूअर यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन द वैल्यूअर यूनिट्स ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, व्हाट विल द ट्रीटमेंट ऑफ डेफिसिट। देखिए सपोज आप खुद चॉइस किया, आप इन्वेस्टमेंट, देखिए आप खुद इन्वेस्टमेंट को चॉइस किया, ये आप इन्वेस्टमेंट को चॉइस किया, तो उसमें क्या है, सपोज इंडिविजुअल कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू, ठीक है, यहां पर दे दिया लेस देन बेंच मार्क कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू, ये कंडीशन आ जाता है। देखिए क्योंकि आप चॉइस किया, इन्वेस्टमेंट आप चॉइस किया, आप जानते हो इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका 10% और गवर्नमेंट का 10% होता है, तो आप जो चॉइस, आप खुद चॉइस किया अभी कहां पर इन्वेस्ट होगा, तो यदि उसका यूनिट इंडिविजुअल कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू वो बेंचमार्क कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू से कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बेंचमार्क कॉर्पस बेसिकली डिफॉल्ट पैटर्न में उसका डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके बेंचमार्क कॉर्पस के साथ आप इक्विवेलेंट करना है, तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इसलिए एवरी मंथ में आपको, यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है, तब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू, बेंचमार्क कॉर्पस का यूनिट और वैल्यू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यदि आप डिटेक्ट करते हो कि आईसी जो इंडिविजुअल कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू कम है, तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके वो बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। मगर इसमें क्लियर है कि नहीं, मगर इसमें यदि आप डिफॉल्ट ऑप्शन चूज किया है, सपोज इंडिविजुअल कॉर्पस में आप डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न को तो ऑटोमेटिकली आप चूज किया है, और बेंच मार्क का कॉर्पस किसमें होता है, वही वही डिफॉल्ट पैटर्न होता है, तो इसमें वेरी नहीं करेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट चॉइस किया तो उसमें इसका यूनिट्स और वैल्यू इससे कम हो जाएगा, तो इसमें आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके, यहां पर आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके बेंचमार्क कॉर्पस का यूनिट्स और वैल्यू के साथ समान ओके करना चाहिए। तो एवरी मंथ में ये दोनों का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसमें आपका, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है तो इसमें यूनिट्स और वैल्यू कितना है, और बेंचमार्क कॉर्पस बेसिकली जो डिफॉल्ट पैटर्न में होता है, इसका यूनिट्स और वैल्यू कितना है। यदि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू कम होता है तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके उसको बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, राइट। और उसमें एक दे दिया, ये दे दिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 सुपर अनुवेशन और रिटायरमेंट, द एम्प्लॉय अंडर यूपीएस शाल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ अश्योर्ड पे आउट। आप देखिए तो दो है आपका, रिटायरमेंट के टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस में जो भी यूनिट्स और वैल्यू है, जो भी इसका वैल्यू की और यूनिट्स, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दोनों का यहां पर ट्रांसफर मींस, और एक फंड है जो है पूल कॉर्पस है, ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ये दोनों को ऐड करने के बाद जैसे वो इक्विवेलेंट होगा, बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आईसी, ये इंडिविजुअल कॉर्पस प्लस पूल कॉर्पस, ये दोनों बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन रिटायरमेंट। यदि ये कम है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो वैल्यू और यूनिट्स है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूल कॉर्पस में। पूल कॉर्पस में क्या है, जो एडिशनल 8.5% जो गवर्नमेंट का शेयर है, तो दोनों वो बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए, ओके, अश्योर्ड पे आउट के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो यदि ये कम हो जाता है, इन केस द वैल्यू और यूनिट्स, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए,
इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, द एम्प्लॉय शैल हैव एन ऑप्शन। एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन भी है, वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन आप देखिए, इन केस यहां पर दे दिया, इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। अच्छा, यहां पर देखिए, सपोज मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल। इंडिविजुअल कॉर्पस में सपोज आपका 55 लाख हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस में आपका 50 लाख हो गया। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस दिए थे, यहां पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस दिए थे, ठीक है, और ये डिफॉल्ट पैटर्न है। तो उसमें यदि ज्यादा होता है तो इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना 5 लाख ज्यादा हुआ तो 5 लाख वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसको? एम्प्लॉय का अकाउंट में, एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी समय वो बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होना चाहिए। तो यहां पर इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने से कितना ज्यादा हुआ 5 लाख, तो 5 लाख क्या होगा ना, एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये कब होता है? जब आप जो इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया है, आप डिफॉल्ट पैटर्न नहीं लिया। डिफॉल्ट पैटर्न में तो समान होगा दोनों, मगर आप जो इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया था, और बेसिकली जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो तो डिफॉल्ट पैटर्न में रहता है। यदि ये स्थिति आ जाता है तो 5 लाख एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, बाकी वो बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट में इसमें देख लीजिए, सपोज इन केस द वैल्यूज और यूनिट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट। अच्छा, ये दोनों का इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे पूल कॉर्पस में। ये दोनों का वैल्यू यदि बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा, ठीक है, तो अब इस केस में आपको फुल अश्योर्ड पेमेंट नहीं मिलेगा, एक प्रोपोर्शनेट अश्योर्ड पेमेंट मिलेगा। याद रखिए, आपका आईसी है, ये इंडिविजुअल कॉर्पस है, इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 10%, और पीसी जो होता है पूल कॉर्पस है, इसमें एडिशनल 8.5% गवर्नमेंट का शेयर होता है। तो ये दोनों का वैल्यू रिटायरमेंट के टाइम में, सुपरएनुएशन के टाइम में, दोनों का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा, तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। इसका एग्जांपल भी हम आगे में देंगे, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आगे में है, हम डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ चीज दे दिया, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है, उसको टाइमली हमारा मंथली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इसमें बेसिकली आपको याद रखना है टाइमली कंट्रीब्यूशन होगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन मिस आउट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन मिस नहीं होगा, और टाइमली वो इन्वेस्टमेंट होगा, तब आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। ठीक है, यहां पर दे दिया रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए दे दिया। रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो जिनका एनपीएस था, वो बेसिकली यूपीएस का ऑपरेशनल का पहले उनका रिटायरमेंट हो गया, उनको भी वो यूपीएस चूज करेंगे तो भी आप उनको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। मगर यदि आप वो एनपीएस से विथड्रॉल कर चुके हैं और उसको पीएफआरडीए ने एडजस्टमेंट करेगा, एडजस्टमेंट करने के बाद एक टॉप अप जो अमाउंट होगा वो पेंशन के आकार में उनको देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ चीज को आपको याद रखना है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देखने से पता चल जाएगा। यहां पर आ गया, यदि आपका सुपरएनुएशन के टाइम में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो आपका अश्योर्ड पे आउट क्या होगा? जब आपका सुपरएनुएशन टाइम है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उस समय आपका जो अश्योर्ड पे आउट क्या होगा, उसके लिए आगे में सर्कुलर आएगा। अभी सर्कुलर गवर्नमेंट रिलीज नहीं किया है, तो इन सब्सिक्वेंट टाइम द गवर्नमेंट विल रिलीज द सर्कुलर इन रिगार्डिंग टू दिस। ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्लैरिफाई नहीं किया है। अभी देखिए, अभी न्यूमेरिकल्स को चलेंगे, डिफरेंट कंडीशंस को। कंडीशंस एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 कंडीशंस है। ये 5 कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको फुल अश्योर्ड
पेंशन मिलने का है। यदि इसमें कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका अस्योर्ड पेंशन को वो अफेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है, जैसे मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया, 12 मंथ्स, ये 5 कंडीशंस को हम लेकर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये 5 कंडीशंस आपका सामने होना चाहिए। जैसे मेरे एग्जांपल में 12 मंथली, जैसे बिफोर सुपरएनुएशन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है। ये कंडीशन है क्योंकि यूपीएस में सुपरएनुएशन आपका आ जाता है और आप यूपीएस चूज किया है, तो सुपरएनुएशन के पहले 12 मंथ्स का बेसिक पे को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। इट मींस 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे हम लेंगे, यहां पर 45,000 है। और इसका जो सिंबल ले लिया पी है, जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का सिंबल पी है। ओके, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में कंडीशन में 45,000 है। और द एम्प्लॉय हैज ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स मींस मंथ्स को कन्वर्ट कर दीजिए, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ्स को कन्वर्ट कर दीजिए, उसका सिंबल क्यू है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, और मंथ्स मैक्सिमम 300 मंथ्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सपोज आप जैसे आप 30 ईयर सर्विस किया, 30 ईयर सर्विस किया, तो उसको मंथ्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली कितना होता है, 360 मंथ्स हो जाता है, मगर हम 300 मंथ्स लेंगे। मैक्सिमम जो क्यू होगा वो 300 मंथ्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो मंथ्स होगा वो 300 मंथ्स होगा, याद रखिए। तो इट मींस वो लिया है वही 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस लिया है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है हम जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको क्यू को कन्वर्ट कर देंगे, उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, और उस जो जब हम मंथ को कन्वर्ट करेंगे वो 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो ऑल कंट्रीब्यूशंस रेगुलरली, ओके, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं होगा, ऑल कंट्रीब्यूशंस मंथली वो रेगुलर होना चाहिए, उसमें कुछ मिसिंग नहीं होगा। और नेक्स्ट है और डिफॉल्ट ऑफ पैटर्न, आप डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस मत कीजिए, डिफॉल्ट पैटर्न आप लीजिए, कोई चॉइस मत कीजिए। आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, इंडिविजुअल कॉर्पस में 10% एम्प्लॉय का शेयर है और 10% गवर्नमेंट शेयर है, ये इंडिविजुअल कॉर्पस में, इसमें कुछ चॉइस मत दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। और डिफॉल्ट पैटर्न का जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो डिटरमाइन कौन करेगा, पीएफआरडी। ठीक है, तो आप कुछ चॉइस मत लीजिए, बेटर है। तो यहां पर एक कंडीशन है, द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न, आप चॉइस ले लिए तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मगर यहां पर डिफॉल्ट पैटर्न को लीजिए। और कोई पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं करोगे। ओके, पार्शियल विथड्रॉल जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, तो पार्शियल विथड्रॉल आपको नहीं करना है। तो ये 5 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वन कंडीशन क्या है आपको ध्यान देना है यहां पर। फर्स्ट वन पी देखिए, ये बिफोर सुपरएनुएशन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और क्यू को आ जाइए, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे क्वालिफाइंग सर्विस, एक एग्जांपल देता हूं, 20 इयर्स, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 240 मंथ्स। तो यही है क्यू का वैल्यू, मगर सभी समय मैक्सिमम होगा जो क्यू का वैल्यू जो हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस, मैक्सिमम क्यू का वैल्यू 300 मंथ्स होगा, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। हमारा जो कैलकुलेशन हम आगे में करेंगे, जैसे आपका 26 ईयर जॉब हो गया, 27, 28, तो उसमें आपका 300 से ज्यादा मंथ हो जाएगा, ज्यादा मंथ होगा, मगर हम क्यों लें, मैक्सिमम 300 मंथ्स लेंगे। और कोई भी क्रेडिट मिसिंग नहीं होगा, अब रेगुलरली आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होना चाहिए, और बाकी आप डिफॉल्ट पैटर्न को चूज कीजिए, और लास्ट वन जो है कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं होगा। यही 5 कंडीशन को फॉलो करके अभी कुछ हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ये है कि आपका दे दिया जो इंडिविजुअल कॉर्पस में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50 लाख से वैल्यू इतना यूनिट से, इसको आईसी बोलते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है ना, एम्प्लॉय का 10% शेयर और गवर्नमेंट का 10%, है कि नहीं। और मैं वही बोलता हूं, यदि आप डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो करते हो, डिफॉल्ट पैटर्न जो फोर्थ कंडीशन है,
डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान होगा। भैया देखिए 50 लाख और 10,000 यूनिट्स। यदि आप डिफॉल्ट, इसमें याद रखिए, यदि आप डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चॉइस मत लो तो ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट पैटर्न मिलेगा, डिफॉल्ट चॉइस मिलेगा, तो वो पीएफआरडीए डिसाइड करेगा वो इन्वेस्टमेंट प्लान को। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस सेम रहेगा, इसमें कोई वैरी नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले जाएंगे तो वहां पर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस में वैरी होगा, आगे में हम डिस्कस करेंगे। मगर यहां पर क्या है, हम फिर जो 5 कंडीशन में बताया उसमें 4th कंडीशन है डिफॉल्ट पैटर्न, तो इसमें डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया गया है। यहां पर ऑल पॉइंट्स को लिया गया है, आई टू, यहां पर देखिए, यहां पर आई टू वी ऑल पॉइंट्स को लिया गया है। ठीक है, ऑल कंडीशंस को फॉलो किया गया है, तो प्रीवियस 5 कंडीशंस को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सभी कंडीशंस को हम लिया है, तो ऑटोमेटिकली आप इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू यूनिट्स के साथ समान है। और यहां पर कैसे अस्योर्ड पे आउट आपको मिलेगा ना, फॉर्मूला ये P/2, जो आपका P क्या है, जो आप बिफोर सुपर एनुएशन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, उसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इनटू मैं बताया था यहां पर Q/300, Q क्या है, Q है आपका क्वालिफाइंग सर्विस को मंथली कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पर थोड़ा मैं फॉर्मूला को देखिए, यहां पर जो P है वो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है। ठीक है, यहां पर जो Q है वो जो क्वालिफाइंग सर्विस था उसको मंथली कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, यहां पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस आप कन्वर्ट कर दीजिए, मंथ्स को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और आईसी है इंडिविजुअल कॉर्पस, बीसी है बेंचमार्क कॉर्पस। तो जो क्वालिफाइंग, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस आपका 20 ईयर्स है तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे 240, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे 300। मगर इसमें याद रखना है, तो जो क्यू का वैल्यू 300 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला देखिए, तो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ठीक है, देखिए फॉर्मूला 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इनटू Q/300। क्यू क्या है, जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मगर ये सभी समय उसका वैल्यू 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, इनटू आईसी का वैल्यू, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, जिसमें एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का 10% कंट्रीब्यूशन, उसका वैल्यू ले जाइए, आईसी डिवाइडेड बाय बेंचमार्क कॉर्पस। यदि इसको आप डिफॉल्ट पैटर्न में लिया तो ये दोनों समान होगा। तो यहां पर हम डिफॉल्ट पैटर्न में लिया है क्योंकि हम जो 5 कंडीशंस था, हम पांचों को हम फॉलो किया है, तो डिफॉल्ट पैटर्न में लिया तो ये दोनों समान होगा। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू है 50,000, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू है 50,000। और यहां पर जो सर्विस हम लिया है 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, यहां पर जो 6 कंडीशन में यहां पर जो क्वालिफाइंग सर्विस है 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स में मंथ्स कितना होगा 300, तो आप वो भी डालिए। ये देखिए क्यू एक्सीड्स 300, इट विल टेक अस 300, क्योंकि जब आपका 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होगा, 27 होगा, 28 होगा, ये 300 मंथ से ज्यादा हो जाएगा। आप 26 इंटू 12, 27 इंटू 12 मंथ्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो मगर मैक्सिमम क्यू का वैल्यू हम कितना लेंगे 300 लेंगे, और उसके हिसाब से यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया हम फर्स्ट कंडीशन में, आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में मैं लिया था 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे कितना लिया था 45,000, तो उसका हाफ कर देना है, इनटू आपका यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, एक कंडीशन में लिया था 25 ईयर्स, तो मंथ्स कितना है, क्यू का वैल्यू 300 बाई 300, इनटू ये आईसी है और ये बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू है, और ये जो है क्यू है, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर हमारा कंडीशन में 25 ईयर्स लिया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका कितना फिक्स हुआ, पेंशन का बेसिक पे 22,500 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। ठीक है, मगर एक मजा बात बोलता हूं, आप उसका कैलकुलेशन देख लीजिए, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मगर कुछ कंडीशन से डायरेक्टली सपोज कैसे होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला आपका याद नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर देखिए आईसी बीसी ये दोनों समान है। क्योंकि दोनों क्यों समान है, क्योंकि हम
डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया है, तो इस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना हो गया, 25 ईयर्स हो गया। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स मींस आपका 50% होगा। 50% किसका, जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का, 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50%। तो अभी आपका एवरेज बेसिक पे कितना है, 45,000 है। सो 45,000 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए ना। 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे कितना होगा, 22,500। वही है 22,500 जो पेंशन का बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ। ठीक है कि नहीं, मगर ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर दे दिया जो क्यू है पी, देखिए ये पी जो है वो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे उसका हाफ, क्यू जो है इसको क्वालिफाइंग सर्विस को मंथ में कन्वर्ट कर दो, मगर वो मैक्सिमम 300 होगा, 300 से हम ज्यादा नहीं लेंगे। आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस, ये जो एम्प्लॉय का 10% शेयर, गवर्नमेंट का 10% शेयर और बेंचमार्क कॉर्पस, ऐसे हम निकालते हैं। मगर यदि आपका कॉमन चीज है, आप डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया और डिफॉल्ट पैटर्न में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू के साथ समान है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका इसका ले जाए 50 मंथ्स, सॉरी 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, तो वही 20 वही आएगा और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे और कंडीशंस को चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पर क्या किया, जो सभी कंडीशंस को फॉलो किया है, मगर सेकंड कंडीशन देखिए, ये सेकंड कंडीशन में क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है। ओके, और सभी जो 5 कंडीशन में लिया था, पांचों कंडीशन में इसको ही चेंज किया है, अदरवाइज और सब ठीक है। नो पार्शियल विथड्रॉल, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे वही 45,000 है, और ऑल कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली टाइमली इट मींस क्रेडिटेड, तो सब है। मगर यहां पर ओनली क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स कितना, 180 मंथ्स। तो उसमें सपोज यहां पर दे दिया इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी का वैल्यू 30 लाख से, बेंचमार्क कॉर्पस भी 30 लाख से, और यूनिट से 8,000, क्योंकि समान होगा, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न है दोनों। डिफॉल्ट पैटर्न यहां पर जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है डिफॉल्ट पैटर्न है, क्योंकि भाई कंडीशन 5 कंडीशन को आप देखिए डिफॉल्ट पैटर्न है। ओनली इसमें चेंज कर दिया 15 ईयर्स जो क्वालिफाइंग सर्विस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देखिए P/2 40 आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे वही है 45,000 है जो हम कंडीशन में लिए थे, फर्स्ट कंडीशन, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इंटू Q/300। क्यू यहां पर हो जाएगा 180, क्योंकि क्यू क्या है आपका, क्वालिफाइंग सर्विस को मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, ये यही है क्यू का वैल्यू, 180 बाय कितना है 300, और इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस है 30 लाख, बेंचमार्क कॉर्पस है 30 लाख, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कितना मिल रहा है, यहां पर देखिए उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, भाई सेम कंडीशन दे दिया, मगर आपका अश्योर्ड पेंशन 10,000 से कम नहीं होगा। मगर यहां पर देखिए 45,000 बाई 2, तो ये 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन ये 15 ईयर्स है, जो क्यू है ना, ये क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है, तो 180 मंथ्स डिवाइड बाय 300 इंटू ये आईसी है, ये बीसी है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पेंशन का बेसिक पे होगा ₹13,500, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। मगर ये सब सही है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आपका क्वालिफाइंग देखिए ये कैसे निकल जाएगा इजीली, आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे कितना है 45,000, ये फर्स्ट कंडीशन हमारा था, जो 5 कंडीशंस को देखिए, और यहां पर जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 15 ईयर्स है, तो यहां पर तो डिफॉल्ट स्कीम में हम जाएंगे तो आईसीबीसी तो सेम रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे हम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से 50%,
तो पर ईयर 2%, तो यहां पर क्या है 15 ईयर्स है तो कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस 50% होता है। 50% मीन्स 50% हम लेंगे किसका, जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का, तो पर पर ईयर 2%, तो यहां पर 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस मीन्स 30% होगा। तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली आपका ये कैलकुलेट कर लीजिए ना, जैसे आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है, इसका आप 30% कैलकुलेट करके देखिए, वही हो जाएगा, आ जाएगा 13,500 आ जाएगा। तो इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं चाहिए, मगर आपको ध्यान देना है कि आपका जो आईसीबीसी समान है। क्योंकि समान है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान है। कैसे समान है, क्योंकि आप डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया है, आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली पीएफआरडीए उसका डिफॉल्ट पैटर्न में उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें आईसीबीसी समान रहेगा। तो उसमें आप देख लीजिए, यदि 25 ईयर्स मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में आपको 50% आपका पेंशन जो बेसिक पे फिक्स होता है पेंशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली 15 ईयर्स में 30% होगा, पर ईयर 2% होता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, 45,000 का 30% वही 13,500 होगा। इतना बड़ा फॉर्मूला को क्यों जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन एक कंडीशन है, यहां पर दे दिया द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशंस आई एन ट्रिपल आई टू भी, अच्छा सभी कंडीशन, मगर यहां पर ओनली चेंज कर दिया क्वालिफाइंग सर्विस, जो सेकंड कंडीशन 10 ईयर्स ओनली है। क्योंकि आप याद रखना है, यूपीएस को अवेल करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए, और यहां पर है 120 मंथ्स और 10 ईयर्स, तो यहां पर आपको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए आपका जो आईसी है 25 लाख है इंडिविजुअल कॉर्पस, और वही रहेगा बेंचमार्क कॉर्पस, क्योंकि आप डिफॉल्ट स्कीम को फॉलो किया है, आप डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया है। डिफॉल्ट पैटर्न मींस क्या है, आप जो जो इंडिविजुअल कॉर्पस था इसमें कोई चॉइस नहीं लिया, आप कोई चॉइस नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला गया। तो इस केस में आईसीबीसी सेम रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर आईसीबीसी सेम रहेगा, देखिए आईसी 25 लाख 10,000 यूनिट्स, बीसी 25 लाख 10,000 यूनिट्स, ठीक है। और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, आप देख लीजिए यहां पर भाई फर्स्ट कंडीशन में क्या था, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे कितना था 45,000 था, ये P/2 इंटू क्यू कितना होगा, क्यू यहां पर 120 होगा, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर से, क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर से 10 ईयर्स को आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया 120 मंथ्स, डिवाइड बाय तो 300 है, इंटू ये आईसी बाय बीसी सेम है, क्योंकि ये 25 लाख से ये भी 25 लाख से, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 9,000 आ रहा है जो पेंशन का बेसिक पे। मगर यहां पर दिया है व्हिच विल बी रेज टू द मिनिमम अश्योर्ड पे आउट ऑफ ₹10,000 प्लस एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ। क्योंकि आपका यहां पर मजा बात है, यहां पर जो आपका बेसिक पे हो गया 9,000 ऐसे हमारा फिक्स होता है, मगर मिनिमम अश्योर्ड पे आउट कितना होना चाहिए आपका बेसिक पे, जो पेंशन का बेसिक पे मिनिमम 10,000 होना चाहिए, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि आपका आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 10 ईयर्स है मीन्स ये है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ओके। अच्छा 10 ईयर्स मीन्स इसका 20% आप निकाल दीजिए, 20% निकाल दीजिए, क्योंकि पर ईयर जैसे आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से 50% ले रहे हैं, पर ईयर 2%, तो यहां पर कितना है 10 ईयर्स है क्वालिफाइंग सर्विस, तो 20% लेकर आप कैलकुलेट कीजिए, वही 9,000 आएगा, वही 9,000 आएगा। ये 9,000 जो होगा ये बेसिक पे फिक्स होगा पेंशन के लिए, मगर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मिनिमम पेंशन मिनिमम मिनिमम बेसिक पे पेंशन कितना होना चाहिए, मिनिमम बेसिक पे पेंशन आपका 10,000 होना चाहिए, और इसके ऊपर आपका डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा आपको, ये कम हो गया ना, मिनिमम जो मिनिमम को ये मेकअप नहीं कर पा रहा है, 9,000 हो गया, आपका पेंशन का मिनिमम बेसिक पे कितना होना चाहिए 10,000 होना चाहिए, तो यहां पर बेसिकली आपको 10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ ऑन इट मिलेगा, ठीक है। क्लियर।
राइट है कि नहीं? नेक्स्ट वन, मगर यहां पर क्या है, आपका सभी कंडीशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट को चलेंगे, देखिए यहां पर और एक कंडीशन है, यहां पर एक पार्शियल विथड्रॉल आप कर दिया। पार्शियल विथड्रॉल किससे किया? इंडिविजुअल कॉर्पस से आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। तो जो पार्शियल विथड्रॉल करेंगे, यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स दिया, ठीक है। तो यहां पर जो पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, तो आपका डिफॉल्ट पैटर्न है, दो डिफॉल्ट पैटर्न आप फॉलो किया है, मगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा, क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। ये एक्चुअली इतना होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए, आप डिफॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि कंडीशंस आई, ट्रिपल आई, आई भी। फर्स्ट वन आपका बीट आई में 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है। सेकंड तो सेकंड का हमारा कंडीशन में 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, मगर यहां पर 10 ईयर्स है। और थर्ड ऑप्शन है कि आप सभी कंट्रीब्यूशन टाइमली क्रेडिट कर रहे हो। फोर्थ, डिफॉल्ट पैटर्न को भी आप फॉलो किया, मगर यहां पे हम जानते हैं कि डिफॉल्ट पैटर्न में सभी आईसीबीसी सेम होता है, मगर यहां पर क्यों कम हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस? क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। तो पार्शियल विथड्रॉल करने से वो 22 लाख हो गया, ओके, इंडिविजुअल कॉर्पस। और यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, ओके। तो इसके वजह से आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो गया बेंचमार्क कॉर्पस से, ठीक है। तो जब कम हो गया, देखिए आप वो फॉर्मूला डालिए यहां पर, तो आपका 45,000 बाई 2, क्योंकि आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है, डिवाइड बाई 2 इनटू ये जो क्यू है क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, उसको मंथ को कन्वर्ट कर दीजिए 120 बाई 300 इंटू 22 लाख बाई 25 लाख, ये हो गया ₹8,800। मगर इसको हम 10,000 नहीं लेंगे, क्योंकि आप विथड्रॉल कर दिया है। जैसे वहां पर क्या था, जैसे 9,000 हो रहा था, मगर 9,000 क्योंकि अस्योर्ड मिनिमम अस्योर्ड पे आउट कितना होना चाहिए 10,000, मगर वहां पे आप कुछ पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया था इंडिविजुअल कॉर्पस से, मगर यहां पे तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वहां पर मिनिमम पे आउट 10,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, और यहां पर भी कम हो गया 8, मगर ये यही रहेगा, इसी के ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। क्यों ये होगा? क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल किया है। इसके वजह से क्या है, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का फुल कॉर्पस हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस। तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस से आप विथड्रॉल किया, तो इसका जो फुल डिपॉजिट वो पूल कॉर्पस में नहीं हुआ, क्योंकि रिटायरमेंट टाइम में हम क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल कॉर्पस में होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस क्या है, जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का 8.5% होता है। मगर यहां पे क्या हुआ ना, इससे आप विथड्रॉल कर दिया, इससे आप क्या किया, विथड्रॉल कर दिया है, तो उसका पूरा फंड इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो इस केस में यदि आपका जो पेंशन का बेसिक पे 10,000 से कम होता है, तो वो वही रहेगा, वो मिनिमम पे आउट जो 10,000 बेसिक पे को नहीं जाएगा, तो वही रहेगा 8,800, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आप इंडिविजुअल कॉर्पस से विथड्रॉल कर दिया, तो उसका पूरा फंड पूल कॉर्पस में नहीं गया, तो इसके वजह से जो विथड्रॉल कर दिया, इसके वजह से क्या हुआ ना, आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस वो बेसिकली बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो 8,800 हुआ, उसको हम मिनिमम 10,000 को नहीं लेंगे, इसी के ऊपर ही डियरनेस 8,800 प्लस उसके ऊपर ही डियरनेस रिलीफ मिलेगा। और इसमें कंडीशन क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस से जो आप विथड्रॉल कर दिया, ठीक है, विथड्रॉल कर दिया, इसका पूरा फंड पूल कॉर्पस में ऐड होता है, तो पूल कॉर्पस को जब ट्रांसफर किया गया, ठीक है, पूल कॉर्पस में जब ट्रांसफर किया गया, उसका पूरा फंड पूल कॉर्पस में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके वजह से इसको हम 10,000 मिनिमम नहीं लेंगे 10,000। मगर प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में जो पेंशन के लिए जो बेसिक पे हुआ वो 9,000 हो गया, मगर वहां पर कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ था, इंडिविजुअल कॉर्पस का पूरा फंड पूल कॉर्पस को ट्रांसफर किया गया था, तो इसके वजह से उसमें 9,000 हुआ, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है मिनिमम पे आउट कितना होगा, अस्योर्ड पे आउट 10,000 होना चाहिए, तो वहां पर हम 10,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। मगर यहां पर क्या है, जैसे आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया इंडिविजुअल कॉर्पस से, तो उसका पूरा फंड पूल्ड कॉर्पस में ट्रांसफर नहीं हो पाया,
तो इसके वजह से जब ये कंडीशन आ जाता है, इसमें हम मिनिमम पे आउट को नहीं जाएंगे, इसी के ऊपर ही हम डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर ही लगेगा। ठीक है, ये एक अच्छा कंडीशन था, राइट। नेक्स्ट को चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है, यहां पर जो कंडीशन दे दिया कि मिसिंग क्रेडिट्स दे दिया। मिसिंग क्रेडिट्स मींस यहां पर एक था कंडीशन, आप देखिए जो 5 कंडीशन था कि थर्ड कंडीशन यहां पर मिसिंग है। ये थर्ड कंडीशन आपका मिसिंग है, जो रेगुलरली क्रेडिट होना चाहिए। एवरी मंथ में आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होना चाहिए, मगर एवरी मंथ में आपका सपोज नहीं हो पाया, कुछ मिसिंग हो गया क्रेडिट, कुछ मंथ्स का क्रेडिट मिसिंग हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपका अस्योर्ड पेंशन को अफेक्ट करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा ना, इंडिविजुअल कॉर्पस देखिए 45 लाख हो गया, 9000 यूनिट्स, बेंचमार्क ज्यादा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्यों हुआ, आप डिफॉल्ट देखिए, डिफॉल्ट ऑप्शन कहां था, आईवी, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। डिफॉल्ट ऑप्शन तो है, डिफॉल्ट पैटर्न तो है, जो डीपी लिखा डिफॉल्ट पैटर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफॉल्ट पैटर्न में आईसी बीसी दोनों समान होना चाहिए, मगर ये क्यों समान नहीं हुआ, ये क्यों समान नहीं हुआ, क्योंकि आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हुआ है, कुछ मंथ्स का क्रेडिट क्या है, कुछ मंथ्स का कंट्रीब्यूशन मिसिंग हुआ है। तो मिसिंग हो गया मींस इसमें क्या है, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख हो गया और यूनिट 9000 यूनिट्स हो गया, और बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख से 10,000 यूनिट्स, तो बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया। तो इस केस में हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए भाई, आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 डिवाइड बाय 2 इनटू क्वालिफाइंग सर्विस, भाई यहां पर जो क्वालिफाइंग सर्विस है 25 ईयर से, तो 300 बाई 300 ये क्यू है। क्वालिफाइंग सर्विस को हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, और इसी जो एग्जांपल में क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 25 ईयर से, जो सेकंड कंडीशन में था। ठीक है, 300 बाई 300 क्योंकि क्यों है, क्योंकि यहां पर हम कंडीशन लिया है, देखिए ये सेकंड कंडीशन को जो लिया ना, ये एक्चुअली क्या बोल रहा है कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहां पर 12 मंथ देखिए, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 12 मंथ्स एवरेज बेसिक 45,000, इसका हाफ। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 25 ईयर्स, मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए 300, ये क्यू वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है, डिवाइड बाय 300 और इनटू आईसी कितना हो गया, आईसी हो गया 45 लाख, और बेंचमार्क जो कॉर्पस हो गया वो बीसी 50 लाख, तो उसमें आपका पेंशन का जो बेसिक पे हुआ 20,250, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। और एक्चुअली ये कितना होना चाहिए 22,500 होना चाहिए आपका जो पेंशन का बेसिक, मगर ये नहीं हो पाया, कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि आपका कुछ मंथ्स का क्रेडिट मिसिंग है, उसी के वजह से क्या हुआ, कुछ मंथ्स का क्रेडिट मिसिंग है, तो इसमें आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, मगर अदरवाइज सब ठीक था। क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स था, एवरेज मंथ एवरेज जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 था, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स था, और डिफॉल्ट पैटर्न था, और आप कोई विथड्रॉल नहीं किए थे, मगर यहां पर प्रॉब्लम था कि कुछ मंथ्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिसिंग था, इसके वजह से आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेस कॉर्पस से कम हो गया। तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में डालेंगे, ये हो गया 20,250, ये पेंशन का बेसिक हो गया, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। मगर एक्चुअली ये कितना होना चाहिए, यदि कुछ क्रेडिट मिसिंग नहीं होता तो ये 22,500 आपका पेंशन का बेसिक होता, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलता। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखिए, यहां पर अगेन आ गया, द एम्प्लॉई मेड पार्शियल विथड्रॉल्स। यहां पर फिर एम्प्लॉई पार्शियल विथड्रॉल्स किया, किससे ना, इंडिविजुअल कॉर्पस से, जिसमें एम्प्लॉय का 10% होता है, गवर्नमेंट का 10% होता है। मगर इसमें क्या हुआ, वो कुछ उसको कॉम्पेंसेट नहीं हुआ। कभी कभी आप पार्शियल विथड्रॉल करते हो तो उसको कॉम्पेंसेट मेकअप कर दो। जब आप एवरी मंथ में आपको इसका यूनिट्स वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का, ये तो नॉर्मली हम लेते हैं, मगर ये कम हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल विथड्रॉल करने से इसका वैल्यू और यूनिट कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके इसको समान कर दीजिए ना, इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, क्योंकि ये तो हम डिफॉल्ट पैटर्न में नॉर्मली बेंचमार्क के हिसाब से निकालते हैं। मगर जब आप विथड्रॉल करोगे, पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका यूनिट्स और वैल्यू इससे कम हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं, जब आप
जब आप विथड्रॉल कर दिया, किससे विथड्रॉल किया? इंडिविजुअल कॉर्पस से, तब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू से कम हो जाएगा। एवरी मंथ में हमको रिपोर्ट मिल रहा है, तो इसमें आप कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दो, करके इस दोनों को समान कर दो। यहां पर चाहिए एडिशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो यहां पर आप नहीं किया, वो बोला हैज नॉट बीन रिकूप्ड। रिकूप्ड माने इट मींस कॉम्पेंसेशन और मेकअप, आप नहीं किया। विथड्रॉल किया, पार्शियल विथड्रॉल किया, मगर आप बेसिकली जो उसको पार्शियल विथड्रॉल को मेकअप करने के लिए आप ट्राई नहीं किया, ठीक है? आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप नहीं दिया, बोला नहीं मैं एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, तो उस केस में आपका अश्योर्ड पेंशन अफेक्ट होगा। आप देखिए यहां पर इंडिविजुअल कॉर्पस में 40 लाख हो गया, 8000 यूनिट्स, बेंचमार्क 50 लाख है, क्योंकि ये डिफॉल्ट पैटर्न में हम पार्शियल विथ, ये तो डिफॉल्ट पैटर्न में है, ठीक है? मगर इसमें आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो गया क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। अदरवाइज ये डिफॉल्ट पैटर्न में समान होना चाहिए, सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में समान होता है, ठीक है? जो हमारा डिफॉल्ट पैटर्न का आई भी है, यहां पर आई टू आई भी हम सभी कंडीशंस को ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000, इमेजिनरी एग्जांपल में 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, सभी क्रेडिट टाइमली दे रहे हो, ओके? डिफॉल्ट पैटर्न है इन्वेस्टमेंट, मगर आप जो लास्ट वन था पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, तो इसके वजह से ऑटोमेटिकली आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, और उसको आप मेकअप नहीं किया, क्योंकि एवरी मंथ में हमको स्टेटमेंट मिलता है, उसमें कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके उसको मेकअप करना था, मगर आप नहीं किया, तो उस केस में आपका देखिए अश्योर्ड पेंशन अफेक्ट होगा। तो 40, ये 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे था, तो मेनली ये P/2 45,000 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बाय 2, और उसमें 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, ये हो गया क्यू का वैल्यू। 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए, मंथ्स को डिवाइड बाय 300 और इनटू, इसमें ये इंडिविजुअल कॉर्पस है और ये बेंचमार्क कॉर्पस है, और इसमें आपका कितना पेंशन फिक्स हुआ? 18,000 हुआ जो पेंशन का बेसिक पे, और उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ये कम हो गया, आप समझ रहे हो कि नहीं? ये कम हो गया क्योंकि आपको जैसे डिफॉल्ट पैटर्न है, मीन्स आपको आपका पेंशन का बेसिक पे इतना होना चाहिए, जो एवरेज बेसिक पे का 50%, क्योंकि यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस ऑलरेडी आपका कितना है? 25 ईयर से, तो 50%, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% होना चाहिए। 50% होगा 45,000 का, हम लिया है जो है हमारे इमेजिनरी एग्जांपल में, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे क्या है? 45,000 है, उसका 50% इतना होना चाहिए, मगर ये कम हो गया क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल किया और उसको मेकअप नहीं किया, तो इसके वजह से आपका जो पेंशन का बेसिक पे कम हो गया, ठीक है? यहां पर देखिए, यहां पर क्या है दे दिया कि सभी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है, सेकंड कंडीशन 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, थर्ड कंडीशन आप टाइमली आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो रहा है, और फिफ्थ वन आप पार्शियल विथड्रॉल नहीं कर रहे हो, मगर यहां पर क्या है? डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप नहीं लिया, यहां पर आप चॉइस किया। देखो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, इन्वेस्टमेंट चॉइस लेने से क्या है ना, आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन था सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न लीजिए, आप चॉइस मत कीजिए। डिफॉल्ट पैटर्न अच्छा है, मगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट चॉइस कर दिया, ओनली वही चेंज है जो 5 कंडीशन में पहले दिया था। तो इसमें आप देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस 55 लाख हो गया और बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख से, तो यहां पे इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो गया। बढ़िया है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया था, तो आप चॉइस किया तो कभी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, मगर डिफॉल्ट पैटर्न में सभी समय इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान होगा, याद रखिए। यहां पर इन्वेस्टमेंट चॉइस कर दिया मींस दोनों में डिफरेंट आ जाएगा, मगर यहां पर अच्छा है कि इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो गया। कितना लाख ज्यादा हो गया? 5 लाख, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख से और इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 55 लाख से, तो एक्स्ट्रा 5 लाख से ये आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 5 लाख, क्योंकि एक्स्ट्रा इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका 5 लाख ज्यादा है, तो एम्प्लॉय का अकाउंट में, डेजिग्नेटेड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बढ़िया है। फिर आपका जो बेसिकली हम ये जो निकालते हैं ना, आप बोलेंगे यहां पर
कि सर बेंचमार्क कॉर्पस ये 50 लाख, ये डिफॉल्ट पैटर्न में, ये डिफॉल्ट पैटर्न में 50 लाख, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया तो इसके लिए आपका सपोज इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा हो गया, तो ज्यादा कितना हुआ, आईसी बेंचमार्क कॉर्पस से कितना ज्यादा हुआ, 5 लाख, तो 5 लाख ज्यादा हुआ मींस इसको एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाकी आपको फुल अस्योर्ड पेंशन मिलेगा। यहां पर फुल अस्योर्ड पेंशन मींस आपका जो आप 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा, क्योंकि अदर कंडीशंस तो है, आप देखिए कैलकुलेट करके देखिए, 5 लाख क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहां पर देखिए इन दिस केस 5 लाख क्रेडिट करने के बाद आईसी बीसी समान हो गया, क्योंकि आईसी ग्रेटर देन बीसी बाय कितना, 5 लाख, तो ये 5 लाख क्रेडिट एम्प्लॉय का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, तो दोनों आईसीबीसी समान हो गया, और इसमें ऑटोमेटिकली आपको 22,500 मिलेगा, क्योंकि 25 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज को आपको ध्यान देना है, मगर वही मेरा 5 कंडीशंस को सभी समय आपको लेना है। तो यहां पर दे दिया, इन दिस केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट ऑफ एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। ओके, बेंचमार्क 5 लाख एक्सेस हो गया, इंडिविजुअल कॉर्पस मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस, तो बोथ एम्प्लॉय का डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट रिटायरमेंट जो बैंक अकाउंट आपका है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इसमें दे दिया कि यहां पर आपको एम्प्लॉय फुलफिल्स, देखिए जो 5 कंडीशन दिया था ओनली वो इस कंडीशन को आई भी, 4th कंडीशन डिफॉल्ट पैटर्न नहीं लिया, यहां पर वो इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, क्योंकि हमारा कंडीशन में क्या था, डिफॉल्ट पैटर्न था, मगर यहां पर इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, तो यहां पर वो क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस एंड द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस। अच्छा, यहां पर क्या है, आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, मगर इसमें क्या होगा, जब कम हो गया आप उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया, आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन देकर उसको समान कर देते, इक्विवेलेंट कर देते, मगर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। वही इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिकूप, रिकूप मींस कॉम्पेंसेट, मेकअप, यहां पर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, क्योंकि आप चॉइस ले लिया, इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया। बेसिकली डिफॉल्ट पैटर्न होता तो दोनों समान होता, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया। ठीक है, जो 4th कंडीशन था, मैं पहले 5 कंडीशन दिया हूं, 4th कंडीशन को आप ब्रीच किया, तो इसमें क्या हो गया, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख है, 9,000 यूनिट्स, और बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख से 10,000 यूनिट्स। ओके, जब आप देखा कि एवरी मंथ में आपको स्टेटमेंट मिल रहा है, यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू से कम है, तो वहां पर एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे दो ना, करके उसको समान करो, मगर आप नहीं किया, तो उस केस में आपका जो पेंशन फिक्स होगा वो कम हो जाएगा। देखिए एक्चुअली कितना होना चाहिए, 22,500 होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, 25 ईयर्स है, तो जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 50% मिलना चाहिए, मगर यहां पर 20,500 हुआ, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, इन्वेस्टमेंट चॉइस करने से आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, क्योंकि सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस हम कैसे निकालते हैं, डिफॉल्ट पैटर्न में, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया तो आपका बेसिकली जो इंडिविजुअल कॉर्पस है बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, मगर कम होने से आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके उसको समान कर देते, क्योंकि एवरी मंथ में आपको स्टेटमेंट मिल रहा है दोनों का, आईसी का और बीसी का, उसमें आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके समान करना था, मगर आप नहीं किया, तो नहीं करने से क्या होगा ना, बेसिकली रिटायरमेंट टाइम में देखा गया आईसी बीसी से कम हो गया, मगर और सब ठीक था, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 इयर्स था। ठीक है, और आप कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, आप क्रेडिट टाइमली किया था, सब कुछ किया था, मगर आपका जो पेंशन का बेसिक पे कम हो गया। ठीक है, और एक है सपोज वही ऑप्शन लीजिए, मगर आप कुछ पार्शियली दे दिया, देखिए पार्शियली रिकूप्स, पार्शियली आप कॉम्पेंसेट कर दिया, जैसे इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया, और इसमें इन्वेस्टमेंट चॉइस में क्या हुआ ना, आपका आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, क्योंकि आप जानते हो जब चॉइस आप लोगे, जो इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका 10% शेयर है, गवर्नमेंट का 10% शेयर है, आप खुद चॉइस किया,
तो उसमें आईसी बीसी में डिफरेंस आएगा, क्योंकि बीसी डिफॉल्ट पैटर्न में होता है जो बेंचमार्क कॉर्पस। आप चॉइस नहीं किया होता तो वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाता और आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान होता। मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, क्योंकि आप ये सोचा कि मेरा जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक्सीड अमाउंट मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो अच्छा के लिए आप इसके लिए ले लिया। मगर क्या हुआ, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया। कम होने से क्या हुआ, आप पार्शियली रिकूप किया, उसको पार्शियली आप कवर अप किया। तो क्या है, देखिए यहां पर आपका 45 लाख से इंडिविजुअल कॉर्पस, तो मगर बेंचमार्क कॉर्पस कितना है, 50 लाख से। ठीक है, तो यहां पे आप पार्शियली 2,50,000 क्या किया, कॉम्पेंसेट कर दिया, उसमें आप दे दिया 2,05,000 सॉरी 2,50,000 आप दे दिया, पार्शियली कॉम्पेंसेट कर दिया कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो वो 47,000 50 लाख हो गया आईसी। आईसी कितना हो गया, 47,50,000 हो गया, 9,500 यूनिट्स हो गया, पहले 9,000 यूनिट्स था। और इसमें आप देखा कि वो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है। क्यों कम हुआ, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया था। आप ये सोचा था कभी मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो जाएगा तो एक्सीड अमाउंट मेरा अकाउंट में जमा हो जाएगा, और वो नहीं हुआ, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया 5 लाख। मगर आप 5 लाख नहीं दिया, एक पार्शियली मेकअप किया 2,50,000, तो वो 47,50,000 हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। एंड आपका बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, 50 लाख से, जो हम डिफॉल्ट पैटर्न में आपका बेंचमार्क कॉर्पस को निकालते हैं। तो इस केस में यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये एक्चुअली होना चाहिए 22,500 होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना था, 25 ईयर्स, और आपका जो हमारा इमेजिनरी एग्जांपल में जो कंडीशन में 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे कितना था, 45,000, तो उसका 50% मिलना चाहिए था। मगर यहां पे क्या हुआ ना, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, इसके वजह से आईसी लेस देन बीसी हो गया कितना, 5 लाख, मगर आप उसका 2.5 लाख आप कॉम्पेंसेट किया, तो बेसिकली आपका आईसी हो गया 47,50,000 और ये हो गया बेंचमार्क कॉर्पस हो गया 50 लाख। तो इसके वजह से आपका जो पेंशन का बेसिक पे वो कम हो गया, ₹21,375। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन था। तो हमने ट्राई किया उसको, आप 5 कंडीशंस को देखिए। कंडीशन में आपको सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न को लेना है, पार्शियल विथड्रॉल नहीं करना है, एवरी मंथ में आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होना चाहिए, और आप देखिए आपका 12 मंथ्स एवरेज, जब आपका सुपरएनुएशन हो रहा है तो उसके पहले आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे लिया जाएगा। और यदि आपका 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो 50% मिलेगा सभी कंडीशंस। सपोज सभी कंडीशन को आप देखिए, ठीक है, सभी कंडीशंस जो 5 कंडीशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, सपोज आपका देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, एवरेज 12, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे सपोज आपका 1 लाख है। ठीक है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस सपोज 24 ईयर्स है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, 25 ईयर्स होता तो 50% होता। थर्ड है, आपका क्रेडिट टाइमली जमा हो रहा है, एवरी मंथ में टाइमली आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो रहा है। आप डिफॉल्ट ऑप्शन को लिया, आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लिया, डिफॉल्ट ऑप्शन लिया। डिफॉल्ट ऑप्शन में आप कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ऑप्शन में वो इन्वेस्ट होगा। और नो पार्शियल विथड्रॉल, नो पार्शियल विथड्रॉल, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो कंडीशंस आप दे दिया, और यहां पर क्या है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में एवरी मंथ में थर्ड कंडीशन क्या था, क्रेडिट जो हो रहा है टाइमली हो रहा है, और डिफॉल्ट ऑप्शन चूज किया नो पार्शियल विथड्रॉल। इस केस में क्या होगा, जैसे आपका ये कंडीशन समझ गया, तो आपका लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे में क्या लिया था, 1 लाख लिया था, और क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, तो यहां पर आप सीधा 48% ऑफ 1 लाख ले जाइए, क्योंकि आपका 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है। 25 ईयर्स होता 50% होता,
12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% होता, तो एवरी ईयर में 2% हम कैलकुलेट करते हैं, तो 48% लेके कैलकुलेट कर लीजिए। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करना है, कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं करना है, ठीक है, और आप एवरी मंथ में आपको क्रेडिट करना है। अदर जो 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन दिया, ठीक है, एक कंडीशन दे दिया। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट कंडीशन, सपोज 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, सपोज आपका 2 लाख है, आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो सपोज 20 ईयर्स है, लेस देन 25 ईयर्स, यहां पर प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको मिलेगा। और थर्ड है, जो क्रेडिट हो रहा है वो टाइमली हो रहा है, एवरी मंथ में टाइमली हो रहा है, थर्ड कंडीशन। डिफॉल्ट ऑप्शन को चूज किया और नो पार्शियल विथड्रॉल, पीडब्ल्यू, नो पार्शियल विथड्रॉल, ये कंडीशन से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है, तो आप सीधा जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 2 लाख है उसका 40% के हिसाब से निकाल दीजिए, 40% ऑफ 2 लाख, ठीक है। तो 80,000 आपका फिक्स होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर्स है। यदि ये 25 ईयर्स होता कि वो 25 ईयर्स से ज्यादा होता तो आपको 50% हम लेते, 1 लाख होता आपका जो पेंशन का बेसिक पे। मगर यहां पर जो क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स है, प्रोपोर्शनेटली लेंगे, 40% हो जाएगा। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका ये 2 लाख है, बिफोर सुपरएनुएशन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है सपोज 30 ईयर्स है। थर्ड है, क्रेडिट हो रहा है टाइमली, क्रेडिट हो रहा है टाइमली। आप डिफॉल्ट ऑप्शन को चूज किया, डिफॉल्ट ऑप्शन को चूज किया और नो पार्शियल विथड्रॉल, तो 30 तो मोर देन 25 ईयर्स, तो कितना आपको, आपका जो पेंशन का बेसिक पे क्या होगा, 50% ऑफ 2 लाख, इट मींस 1 लाख होगा। इसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25, यदि 25 ईयर से ज्यादा होता है वही मैक्सिमम 50%, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का मैक्सिमम 50%। मगर इसी कंडीशन में सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर मैं कर दिया 10 ईयर्स कर दिया, तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना होना चाहिए, 10 ईयर्स। 10 ईयर से कम होगा तो आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज यहां पर अदर कंडीशन सब ठीक है, आपका 2 लाख है सपोज, बिफोर सुपरएनुएशन 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 2 लाख है, क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर से, क्रेडिट टाइमली हो रहा है, डिफॉल्ट ऑप्शन चूज किया, नो पार्शियल विथड्रॉल, तो डायरेक्टली आप निकल दीजिए ना। इसमें आपको कितना मिलेगा, 20% ऑफ 2 लाख, 40,000 आपका पेंशन का बेसिक पे होगा, इसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो ये जो 5 कंडीशन के हिसाब से मैं वहां पर निकाला, और डिफॉल्ट ऑप्शन आप चूज करोगे तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होगा, याद रखिए। यदि आप डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करोगे तो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होगा। यदि अदर कंडीशन, नो पार्शियल विथड्रॉल, टाइमली क्रेडिट, ठीक है, और ये समान होगा ऑटोमेटिकली। मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया तो वहां पर ये हो सकता है आईसी ग्रेटर देन बीसी हो सकता है, कि आईसी लेस देन बीसी हो सकता है। आईसी ग्रेटर देन बीसी अच्छा है, आपका जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, और आईसी लेस देन बीसी होगा तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो ये अच्छे से मैं उसको क्लैरिफाई किया। उसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू भी लाऊंगा, ठीक है, तो आप देखिए आपको कैसे लग रहा है, आप फीडबैक दीजिए। और कुछ एग्जाम्पल्स में मैं जो सब्सिक्वेंट वीडियोज में उसको क्लैरिफाई करूंगा। तो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, बट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल, राइट। So thank you and namaskar to all.